It is my privilege to now invite our chief guest, the Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh, to deliver the keynote address. Welcome, sir. Good morning, namaste, good morning. Professor Balram Pani, Dean of Colleges, Dr. Vikas Gupta, Registrar of the University, Professor Rupam Kapoor, Presiding Officer, Internal Complaints Committee, Professor Payal Mago, Professor Rajni Abi, Professor Neera Agnimitra, Professor Ratnavali, Professor Hanit Gandhi, प्रोफेसर श्यामा रथ, प्रोफेसर रीना चक्रवर्ती, डॉक्टर गीता सहारे. अभी क्या है, बहुत सारे छूटेंगे इसमें अभी. And other distinguished women teachers, deans, head of the departments, principals of different institutions, faculty members, officers and officials of University of Delhi, Shri Girish Ranjan ji, Finance Officer, Administrative Staff, Research Scholars, and my dear students. Namaste, good morning to all of you. First of all, I would like to congratulate Internal Complaints Committee for organizing this event on International Women Day. Although it will come on 2 days, but we are celebrating today. Congratulations, ma'am. But normally it doesn't happen. A function organized by Internal Complaints Committee. Because this is a very positive step, very encouraging step. Otherwise, normally जिसकी जिंदगी में ICC आ जाए उसकी बड़ी समस्या हो जाती है. ICC से लोग दूर रहना चाहते हैं. But now they have also released the rules and regulations. I would like to request all of you, and through all of you, all the teachers, students, and others, please go through every word of it. It is important. We have to understand that. Sometimes we do many things which we don't want to do, but we don't have any idea about law. One example just I would like to give. Regarding this posterbaji during elections. When I came to know the number of laws which prevent us to do so, and when these laws were shown to our students, they were not ready to digest this, that such type of laws are in the country. And now you can see white walls of University of Delhi. Now nobody is doing that activity, posterbaji or writing something on the walls of the university. So that's why laws are important. We should respect our laws. So first, please read that. Congratulations again to the ICC members for ensuring safe and enabling environment to all women, girls, and our students. But one question comes in my mind: do we really need ICC? Do we really need Internal Complaints Committee? Second question is: do we really need women empowerment strategies? And the Government of India flagship program is Beti Bachao, Beti Padhao. Do we need such a program? I don't know how many of you have seen, recently a movie has come on Netflix, Mrs. कितनों ने देखी है? हाथ खड़े करो जरा. हाँ, कई लोगों ने देखी है. जिन्होंने नहीं देखी है, आज देखना उसको. उसमें जो बेटी है कितना एडजस्ट करने की कोशिश करती है, सब कुछ करना चाहती है, कैरियर को अलग हटाती है, एडजस्ट करती है, एकोमोडेट करती है, पर रिजल्ट कुछ नहीं आता. उसके सारे एफर्ट्स का रिजल्ट कुछ नहीं आता क्योंकि माइंडसेट दूसरे का वैसा है. तो अगर माइंडसेट दूसरे का वैसा है तो रिजल्ट कहां से आएगा? तो अगर उस फिल्म को आप देखेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकेंगे, वी नीड आईसीसी, वी नीड वुमेन एम्पावरमेंट स्ट्रेटजीज, एंड वी ऑल्सो नीड द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इसकी बहुत जरूरत है सब चीजों की, क्योंकि सामने वाले का मन कैसे बदलें, एक सवाल है. तो जिन्होंने नहीं देखी आज वो मिसेस जरूर देखना आप फिल्म.
हमें सोचने पे मजबूर करेगा कि हम सोसाइटी में कैसा समाज बनाते हैं, कैसा समाज है हमारा, क्या हम परिवर्तन को तैयार हैं। ये एक प्रश्न है जो कि इंटरनेशनल विमेन डे पे जब हम बात करते हैं तो हमको इसको समझने की भी जरूरत है और इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है। मैं ऐसा मानता हूं, हम में से बहुत सारे लोग मानते होंगे, ऐसा नहीं कि मैं ही मानता हूं, कि कम नसीब है वो घर जहां बेटियां नहीं हैं। मैं बहुत बार ये कहता भी हूं कि कम नसीब है वो घर जहां बेटियां नहीं हैं। जिसके घर में बहुत 2 बेटियां हैं वो बहुत नसीब वाला घर है। जिसके घर कम से कम 1 बेटी है वो भी नसीब वाला घर है। जिसके घर बेटी नहीं है वो कम नसीब घर है। इसलिए जब घर में बेटी आती है, किसी भी रूप में आए, उसका ध्यान रखना उस घर का काम है। तो जो मिसेज में है वहां पर आप देखेंगे तो आपके मन में आपके एक लगेगा कि समाज को बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है, इसीलिए कानून की भी जरूरत है। But when we talk about women empowerment tools, the most effective, important tool is education. First is education. Second is women should be financially independent. No compromise on this. And in 21st century, my dear daughters, we should not compromise on this. This should be our objective of life. We should be financially independent. Whatever cost we have to pay, we should be ready to pay that cost. Then law will protect us, but we have to create the safe environment for everyone. This is the duty of the state, universities, administration, and others, and the society, our parents, to provide the safe environment. Here the role of ICC comes to. That's why we need ICC, effective ICC, and our ICC team is doing very well. I would like to congratulate. Government of India is taking many initiatives. देखो कितना काम कर रही है प्रधानमंत्री जी, बहुत सेंसिटिव है इन सब्जेक्ट्स पे। मैं 2-3 चीजें आपको गिनाऊंगा तो आपको लगेगा कि भारत की सरकार की दिशा सही है, मंशा भी सही है। पहला नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, अभी धीरे धीरे वो अभी कानून आया है, अभी इंप्लीमेंटेशन होगा तो विमेन प्रेजेंस पार्लियामेंट में बढ़ेगी, असेंबलीज में बढ़ेगी। उसका जो इंपैक्ट आएगा और सोशल इंपैक्ट आएगा उसको सबको स्टडी करने की जरूरत होगी कि कैसे इंप्रूवमेंट उसमें आएगा। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ, क्योंकि अभी तो लॉ ही बनाया ना, उसके रिजल्ट नहीं आए तो किसी को एहसास नहीं हो रहा कि ये हुआ क्या है। पर बहुत बड़ा काम भारत की सरकार ने किया, भारत के प्रधानमंत्री को उसके लिए बहुत बधाई। दूसरा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये गुजरात में पहले कार्यक्रम शुरू हुआ था, वहां की सक्सेस से ये भारत की सरकार ने इस कार्यक्रम को लिया। आपने कभी देखा है, आप जा रहे हो किसी भी ट्रक के पीछे, छोटे ट्रक के पीछे लिखा होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने कोई ऐसा ट्रक देखा है जिसके पीछे नहीं लिखा होता? ध्यान करना, सब पे लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? मैंडेटरी किया है कि लाइसेंस तब मिलेगा जब ये लिखोगे आप। ऐसे कोई नहीं लिखता कि लाइसेंस तब मिलेगा, लाइसेंस तब रिन्यू होगा जब आप ट्रक के पीछे लिखेंगे, जिससे समाज में ये मैसेज जाए। जब हम लगातार देखते हैं कि हमारे मनों में बार बार देखने से फर्क पड़ता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2 शब्द नहीं है, ये जीवन दर्शन है। और भारत की सरकार यदि इस पे चलती है, इस पे काम कर रही है, एफर्ट लगा रही है, इनिशिएटिव्स ले रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल विमेन डे पे हमको भारत की सरकार को इसके लिए बधाई देनी चाहिए। तीसरा काम जो शायद दिल्ली में बैठे हुए हमको कम अंदाज होगा, जो गैस सिलेंडर की योजना थी। अभी भारत के शिक्षा मंत्री, पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जब मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर था तो एक मेरे पास बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक स्टडी मुझे बताई कि जो कहते मैं 10-15 साल से ग्रामीण इलाकों में काम करता हूं और वहां पर जो विमेन की इश्यूज हैं वो इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं, तो आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मिनिस्टर इसमें क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा आपको गैस सिलेंडर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा लेकिन गैस सिलेंडर देंगे तो जो बात निकल कर आई कि गैस सिलेंडर तो चलो सबको पता था, दे सकते थे, खरीद सकते थे, कि भारत के गांवों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है 7-8 हजार 10 हजार रुपए की वो कर सकें। आप उसको फ्री कर दीजिए। एक बार अगर आप ये फ्री देंगे तो रीफिलिंग का काम वो लोग करा लेंगे। आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि जब ये सब्जेक्ट प्रधानमंत्री जी के पास गया, इमीडिएटली अप्रूव हुआ और आज भारत के गांवों में जो लोग भी कहीं गांवों से आपका रिश्ता हो तो देखना कि अब हम सबके घरों में वो गैस का चूल्हा पहुंचा। बहुत बार प्रधानमंत्री जी इस बात का जिक्र करते हैं, जो गैस का चूल्हा पहुंचा वो तो एक बात हुई, उससे जो बीमारियां कम हुई, इसका जो सोशल इंपैक्ट है उसको तो स्टडी भी हुआ ही नहीं। इस पर अभी बहुत स्टडी करने की जरूरत है। जो लोग भी इस तरह की स्टडी किया करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, तो गांव में हमारे जो बेटियां हैं, मदर्स हैं, उनका जो हाल इंप्रूवमेंट हुआ होगा, आंखों का इंप्रूवमेंट हुआ होगा, लंग्स का इंप्रूवमेंट हुआ होगा, उस पर तो स्टडी करके तो देखिए, ये कोई 700 रुपए 600 रुपए का सिलेंडर की बात नहीं है। एक दो लोग मेरे पास ऐसे जाते हैं तो गांव कहते हैं चूल्हे का तो बहुत अच्छी रोटी होती थी, इसमें वो बात नहीं है। अरे पर कॉस्ट क्या है उसकी, ये तो देखो, ये तो आदत की बात है। सिर्फ परिवर्तन ऐसे ही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम था, इनिशिएटिव, जिसके कि असर भारत में अब दिखने लगे हैं। धीरे धीरे सोशल स्टडीज भी आएंगी, इंटरनेशनल स्टडीज भी आएंगी इस पे कि देश को इससे कैसे फायदा हुआ। शौचालय हम सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। एक और योजना जो है नल से जल, गांवों के अंदर पानी की टंकी लग जाए और पानी आने लगे, ये तो भारत में 75 साल की आजादी के बाद हुआ ही नहीं था, इस पे तो काम ही नहीं हुआ था। लेकिन आज बहुत सारे गांवों में, दूर के गांवों में भी ये होने लगा है। ये विमेन एम्पावरमेंट का एक रास्ता है कि आपको पूरा पेरिफेरिया बना के देने की एक तैयारी है कि किस तरह से एक स्वस्थ मन, स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश तैयार किया जा सकता है। बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल इंसेंटिव सरकार देती है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है, इकोनॉमी बैठ जाएगी। आज वो सब्जेक्ट नहीं है बोलने का, इकोनॉमी बैठेगी या इकोनॉमी बढ़ेगी ये तो वक्त बताएगा। इससे बैठेगी या बढ़ेगी ये तो वक्त बताएगा। पैसा तो इकोनॉमी में ही आना है, ऐसे नहीं जाएगा तो ऐसे आएगा। उसका रूट चेंज हो गया वो बस पैसे का, कि विमेन के थ्रू वो रूट हो गया पैसा। इसीलिए जब विमेन लेड डेवलपमेंट की बात है तो ऐसा समय जबकि सरकार की भी सपोर्ट है, समाज भी बदल रहा है और मिसेस जैसी फिल्म आकर हमारी आंखें भी खुलती हैं, हम जानते हैं, लेकिन आंखें खुलती हैं देख के। तो इस बदलते हुए समाज में जब विमेन लेड डेवलपमेंट की बात है तो एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलता हुआ भारत हम रोज देखते हैं। और सबसे बड़ा जो काम है विमेन करती हैं वो है नई पीढ़ी के निर्माण का काम, नई पीढ़ी के निर्माण का काम। और नई पीढ़ी का निर्माण अच्छा होगा, संस्कारी होगा तो अच्छे भारत का निर्माण होगा। बहुत बड़ा योगदान है, ये देश आपसे बहुत अपेक्षा रखता है। एक किसी की दो पंक्तियां कोट करूंगा कि कोई अपनी ही निगाहों से तो देखेगा मुझे। कई बार क्या होता है ना, हम बोलते हैं यार अरे हमारे बारे में खराब क्यों कह रहा है, हम तो अच्छा कर रहे हैं, ये हमारे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा कह रहे हैं। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा कि कोई अपनी ही निगाहों से तो देखेगा मुझे, एक कतरे को समंदर नजर आऊं कैसे। क्या इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं कि कोई अपनी ही निगाहों से तो देखेगा मुझे, हर एक को समंदर नजर आऊं कैसे। कतरे में क्या होता है, आप दूसरे को छोटा कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं हर एक को समंदर नजर आऊं कैसे। तो जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये जो मन बदलने का जो काम है, तो कभी मन दुखे ना तो सोचना कि वो अपनी सोच से परेशान है, वो अपने नजरिए से, अपने निगाहों से ही तो मुझे देख रहा है। हर एक को मैं अच्छा लगूं ये जरूरी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। तो भारत की बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं और हमें गर्व है आप सभी पर। वी आर प्राउड ऑफ यू। लेकिन ये शुरुआत है, अभी भारत को बहुत कुछ करना है। ये शुरुआत है, अभी भारत को बहुत कुछ करना है। तो रात जब मैं सोच रहा था तो एक बात मेरे मन में आई कि एक काम करना चाहिए लॉ से, टू एंश्योर 50% विमेन प्रेजेंस इन एवरी पुलिस स्टेशन। लॉ से हमको ये एंश्योर करना चाहिए कि हर पुलिस के थाने में 50% विमेन ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स हों। थाने में हमें जाते हुए डर लगता है कई बार,
दूसरा तो कैसे जाएगा, आम इंसान सबको डर लगता है। उस माहौल से मुक्ति मिलेगी यदि 50% विमेन प्रेजेंस वहां पे होगी। और दूसरा, 50% पीसीआर वैन्स शुड हैव 100% विमेन प्रेजेंस। 50% पीसीआर वैन्स दिल्ली में चलनी चाहिए जो 100% उसके अंदर विमेन हो। AK-56 होगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ कर सके। सेफ माहौल अपने आप बनेगा। 47 नहीं 56 होगी हाथ में तो अपने आप माहौल बनेगा। ये काम कानून से करने की जरूरत है। अपने आप सेफ एहसास होगा। आपके पास, मैं विकास गुप्ता जी की बात करता हूं। विकास गुप्ता जी रात को जा रहे हैं और अगर एक पीसीआर वैन जिसमें कि AK-56 हैं और बहुत सारे पुलिस वाले आदमी उतरते हैं तो डरेंगे। विमेन उतरेगी तो शायद उतना ना डरें, शायद ना डरें। ये जो फर्क है इसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय इसमें बहुत अच्छा करता है। आप ये देखिए कि हमारे पास 50% से ज्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे गर्ल्स कॉलेजेस हैं। और सबसे अच्छा इनिशिएटिव एक और जो मेरे मन को अच्छा लगा यहां आने के बाद, NC वेब का, कि जब उन बच्चियों से बात करते हैं, अंडर प्रिविलेज गर्ल्स हैं, उनकी परेशानियां समझो, देखो तो सही। मुझे लगता है आर्यभट्ट कॉलेज का आर्यभट्ट मनोज सिन्हा साहब आर्यभट्ट कॉलेज का इंसिडेंट है। मैं शनिवार को गया, किसी शनिवार को, तो NC वेब की क्लासेस चल रही थी। तो मैंने कहा कि मैं कुछ ना NC वेब की गर्ल्स से मिलना चाहता हूं। तो प्रिंसिपल साहब ने अरेंज किया, 8-10 बेटियां आ गई बात करने के लिए। मैंने कहा क्या करते हो? किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। एक ने कहा मैं 5 दिन करते क्या हो? उसने कहा मैं कुछ नहीं करती हूं। मैंने कहा बेटा कुछ तो करते होंगे। तो उसकी आंखों में आंसू आए, वो बता नहीं पा रही थी, झिझक रही थी। तो मैंने छोड़ दी बात को। मैंने कहा दूसरे से बात की, तीसरे से बात की। कोई बच्ची घर में काम करती है, कोई किसी और के घर में काम करती है, पढ़ती हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहती हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के जिन लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट को सोचा होगा और फिर इंप्लीमेंट किया होगा, आज श्रद्धा से मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतने वर्षों से कितने लोगों के जीवन को बदला होगा। तो एजुकेशन अगर सबसे बड़ा टूल है ट्रांसफॉर्मेशन का, उसका एक उदाहरण है NC वेब। तो मैंने उनको कहा कि बेटा ये बताओ कि एक काम मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा सर लाइब्रेरी में हमें बैठ के पढ़ने नहीं देते। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा ऐसा क्या है? प्रिंसिपल साहब को पूछा कि क्या दिक्कत है? कहते बच्चियां बहुत हो जाती हैं और इतना हम ना हैंडल नहीं कर पाते। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं करें। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय 25 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया लाइब्रेरी के ऊपर रोज खर्च करता है तो इन बेटियों को वो सुविधा क्यों नहीं होनी चाहिए? और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आज जो रेगुलर बच्चे हैं उनको एक्सेस है, ऑनलाइन एक्सेस है सारे जर्नल्स की, सारे बुक्स की। आज NC वेब की सभी बच्चियों को वही एक्सेस है, बुक्स की, जर्नल्स की। और लाइब्रेरी में सैटरडे संडे जब भी वो दूसरे बच्चों की तरह उस कॉलेज की लाइब्रेरी में जा सकते हैं। मेरा प्रिंसिपल से भी रिक्वेस्ट है कि आप एडिशनल स्टाफ डिप्लॉय कीजिए, रखिए। कैसे रख सकते हैं उसके रास्ते सोचिए, लेकिन वो आपकी बेटी है, ये ध्यान रखिए। सभी प्रिंसिपल से मेरा निवेदन है ये कि ध्यान रखें, हमारी बेटियां हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय एक और किया, रिजर्वेशन किया, सिंगल गर्ल चाइल्ड, बहुत अच्छी बात करी, जिसका भी सजेशन रहा होगा। लेकिन पुण्य पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय को इसका मिलेगा कि हमने एक अच्छी परंपरा की शुरुआत करी। भारत इसको देखिएगा, फॉलो करेगा, धीरे धीरे सब जगह इसको फॉलो करेगा। एक ना मैं कॉर्पोरेट सर्वे हर बार बोलता हूं जब भी विमेन पे बात करता हूं, मन करता है कि उसको बार बार बोलूं, थोड़ा रिस्क रहता है लेकिन फिर भी बोलता हूं। एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वे हुआ, इंटरनेशनल सर्वे था, यूरोपियन एंड US का। मिड लेवल जो विमेन मैनेजर्स हैं उनसे पूछा गया, और मिड लेवल जो उनके कलीग्स थे, आदमी थे, उनसे भी पूछे गए सवाल। पहला सवाल था, एक ही सवाल था, उसके फिर सब क्वेश्चंस हैं। वो तो पूछा कि डू यू नीड ए विमेन बॉस? डू यू नीड, बोलो, रेडी टू एक्सेप्ट ए विमेन बॉस? 70% बेटियों ने कहा नो वी डोंट वांट।
Why? Then why? We have to specify why. उन्होंने कहा ये तो कंसिडरेट नहीं होती, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लिहाज नहीं करती, ऐसे 3-4 बातें कही। इतने सन्नाटे की जरूरत नहीं है। यही सवाल आदमियों से पूछा गया, 70% से ज्यादा आदमियों ने कहा यस, नो प्रॉब्लम, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि कंसिडरेट होती हैं, अंडरस्टैंडिंग है, डिफिकल्टी समझती हैं, एक्सेप्टेंस है उनमें, लीडरशिप एबिलिटीज है उनमें। कोई अपनी ही निगाहों से तो देखेगा मुझे। ये एक, मैं सबके लिए प्रश्न है मेरा कि अगर ये सर्वे थोड़ा भी सच है, अपने मन से पूछें, सवाल किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आदमियों को तो कोई दिक्कत है नहीं, खराब आदमियों को हटा देते हैं बीच में से, अच्छे आदमियों की बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विमेन को विमेन के साथ अच्छा होने की जरूरत है। विमेन को एज ए वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये सब जगह जा रहा है, फिर भी मैं बहुत थोड़ा घबरा के पर एक बात कह रहा हूं, ये भी एक सोशल इशू है जिस पर विचार की जरूरत किसको, हमें नहीं है, विमेन को है, कि विमेन के साथ अच्छा होने की जरूरत है। क्यों है, कैसे है, क्या कारण है, क्या हिस्टोरिक रीजन है, क्या साइकोलॉजिकल रीजन है, मुझे नहीं मालूम, और है भी कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं तो सर्वे कोट कर रहा हूं, तो मेरे पे ये ना चिपकाया जाए कि मैंने कहा। मैं एक सर्वे कोट कर रहा हूं, पर ये एक बात है जिस पर कि विचार विमेन नहीं कर सकती है। मैं एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का डीन था, सॉरी वाइस चांसलर था, तो हमारे पास एक फैकल्टी ऑफ होम साइंस है, बहुत अच्छी फैकल्टी है वहां की। आजकल उसका नाम बदल गया है, फैकल्टी ऑफ फैमिली समथिंग। होम साइंस की फैकल्टी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन, डिपार्टमेंट समथिंग समथिंग। तो वहाँ की एक डीन थी, बहुत अच्छी प्रोफेसर थी, अकॉम्प्लिश्ड प्रोफेसर उमा जोशी मेरे पास आई। मैं जब ज्वाइन किया उससे पहले वो इंचार्ज वाइस चांसलर भी थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सीनियर पर्सन ऑफ द यूनिवर्सिटी, बहुत परेशान। उन्होंने कहा कि सर मैं ना रिजाइन करूंगी, मैं नहीं कर सकती काम इस फैकल्टी में, मेरे को बहुत तंग हो गई हूं, मैं सबसे झगड़ों से तंग हो गई हूं। मैंने कहा हुआ क्या? कह रही मेरे कमरे में मारपीट हो गई। मैंने कहा आपके पास तो सारी की सारी लेडीज ही हैं, 100% आपके पास तो वही है, पूरी फैकल्टी में 2-2.5 हजार की आपकी फैकल्टी है, उसमें 2 स्टूडेंट, टीचर कोई भी मेल नहीं। कह रहा यही तो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि मैं उनकी बात सुन ही रहा था, परेशान थी वो। इतनी देर में डीन फैकल्टी ऑफ साइंस हमारे थे प्रोफेसर निखिल देसाई, अभी रहे नहीं, वो चले गए, वो आए। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ प्रोफेसर उमा, क्यों परेशान हो रही हो, रो क्यों रही हो, परेशान क्यों हो? कहता नहीं मैंने सर को बता दी है बात। तो आपकी फैकल्टी थोड़ी है, आपकी फैकल्टी तो चलाना आसान है। मुझे कहती सर मुझे डीन फैकल्टी ऑफ साइंस बना दो, मैं अच्छे से चला के दिखाऊंगी। मैं कहा 100% आप अच्छे से चलाओगी, कोई डाउट ही नहीं है, आप यूनिवर्सिटी भी अच्छे से चलाओगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चैलेंजेस तो फैकल्टी ऑफ होम साइंस के हैं। तो निखिल देसाई बोले सर मुझे दे दो, मैं चला लूंगा। तो प्रोफेसर उमा जोशी क्या बोलते हैं कि अरे निखिल देसाई साहब को दोगे तो चला ही लेंगे, इनको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी जो मुझे नहीं मिल रही। तो ये मैंने उससे रिलेटेड ही बात कही है कि जिस पर एक डिस्कोर्स की आवश्यकता कई बार लगती है, क्योंकि कभी इस पे बात होगी सेंसिटिव टॉपिक पे तो इंप्रूवमेंट आएगी, तभी तो ये इंप्रूवमेंट आएगी। अभी सारा जो मैन विमेन का कन्फ्लिक्ट हम करके इस इशू को झाड़ लेते हैं, पर इसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आप बार बार देख रहे हो, 5-7 मिनट और बोल लेता हूं। मुझे लगा अभी खत्म करूं कि रशिया साहब बार बार देखते हैं कि मैं ओवर टाइम कर गया हूं। इंटरनेशनल विमेन डे है। जब विमेन की बात आती है और एंशिएंट इंडिया की बात आती है तो गार्गी मैत्रेय की अक्सर चर्चा होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में उनके नाम पे कॉलेजेस भी हैं, होनी भी चाहिए, विदुषी थी, और जो लोग विद्वान होते हैं उनकी चर्चा होनी ही चाहिए।
इससे यह भी पता लगता है कि परंपरा के नाम पर औरतों को दबाया ना जा सके, इसलिए भी बहुत चर्चा होती है। लेकिन एक और बात है, हम सबके मन में, सब जानते हैं भारत में तो कि अगर जीजाबाई न होती तो शिवाजी न होते, अगर जीजाबाई न होती तो शिवाजी न होते। पर क्या आप जानते हैं कि जबाला कौन थी? कई लोगों को बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है, कईयों को प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है, उनका प्रारब्ध होगा। क्या आप जानते हैं जबाला कौन थी? और सत्यकाम जैसे महान ऋषि को बनाने में उनका क्या योगदान था? ये कथा भारत के बहुत सारे उपनिषद में आती है। छांदोग्य उपनिषद की है, सत्यकाम जबाल की कथा आती है। सत्यकाम जो है ऋषि गौतम के शिष्य थे और बहुत बड़े ऋषि हुए। लेकिन अगर जबाला नहीं होती, उनकी सत्यनिष्ठा नहीं होती, तो वो ऋषि नहीं बन सकते थे। जबाला सत्यकाम की मां थी, जैसे जीजाबाई शिवाजी की मां थी, जबाला सत्यकाम की मां थी। वो खुद दासी या सेविका थी, काम करती थी, महल में काम करती होंगी, जहां भी काम करती होंगी। लेकिन उनको ये पता था कि शिक्षा से ही परिवर्तन संभव है। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर पढ़ाई के महत्व को जानती थी, उसकी ताकत को भी जानती थी। उन्होंने अपने बच्चे सत्यकाम को बार बार समझाया कि बेटा विद्या लेनी है, अच्छे से लेनी है, तो ही आपका यह जीवन बदलेगा। और गुरुकुल में उन्होंने जाने की उसको प्रेरणा दी। जब ऋषि गौतम ने सत्यकाम को से बातचीत करी गुरुकुल में, तो उन्होंने पूछा कि आपके पिताजी का क्या नाम है और गोत्र का क्या नाम है। बच्चे को पता नहीं था। बच्चा मां के पास गया कि मां बताओ कि मेरे पिताजी का गोत्र क्या था। इस पर जबाला उन्होंने कहा कि उनको, गुरुजी को कहना कि मेरी मां सेविका का काम करती थी, सेवा का काम करती थी, और किन्हीं कारणों से मेरे पिता का गोत्र नहीं जानती। लेकिन उनको बोलना मेरी मां का नाम जबाला है, इसलिए मेरा नाम सत्यकाम जबाल है। यही मेरा गोत्र है, यही मेरा परिचय है। प्राचीन भारत की बात है, यही मेरा गोत्र है और यही मेरा परिचय है। अगर हम सोचें तो सत्यकाम की मां जबाला ने जो किया वो आसान नहीं था उसके लिए। झूठ भी कह सकती थी, कुछ सत्य के साथ रही। लोक व्यवहार की चिंता ना करते हुए उस नारी ने अपने बेटे को सत्य के साथ रहने के लिए शिक्षा दी। सत्य और साहस साथ साथ चलता है, तभी सत्यकाम एक बहुत बड़े ऋषि बन सके। वरना गुरुकुल से तो न जाने कितने लोग पढ़ के निकले होंगे। मां की जो शिक्षा, प्रेरणा और समझ उनको मिली, इसी कारण से जबाला ने बताया कि ज्ञान ही है जो शाश्वत है, पूजनीय है, सत्य उसका मूल आधार है, ज्ञान ही है जो सनातन है। यह है भारत की परंपरा। ऐसी न जाने कितनी माएं हैं जो भारत के इतिहास में, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बच्चों को बनाया, वो बड़ा बनाया जो आज उनको हम जानते होंगे। इसलिए सत्यकाम जबाल अपनी मां के नाम से जाने जाते हैं। ये तो हुई पुरानी बात। एक बार मैंने पहले भी इस पे चर्चा की थी कि किसी पोएट ने लिखा, एक पोएम लिखी, और ऑल दो पोएट्स थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, समय से ज्यादा सोचते हैं, आगे भी सोचते हैं, कई बार कम भी लिखते हैं कि समाज में वैमनस्य न हो जाए। दोनों तरह की बात है। तो किसी ने कविता लिखी और मेरे पास उनका नाम नहीं है, मैंने ढूंढने की कोशिश करी तो कई लोग उसके क्लेमर हैं, इसलिए मैं कोट नहीं कर रहा, मुझे नाम मालूम नहीं पड़ा, पर कविता बहुत अच्छी है। वो कहती हैं कि उन्होंने लिखा कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। सीता खुद रावण ललकारो, राम नहीं आने वाले। अरे क्या समाज हो गया हमारा। यानी किसी कवि को यह लिखना पड़ जाए, इतना अविश्वास कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, उसको कोई सहायता को नहीं आएगा। ये जो अविश्वास है, इनसिक्योरिटी है, इसके लिए भारत का समाज जिम्मेदार है। बेटियों को, बहनों को, माओं को यह विश्वास क्यों नहीं होना चाहिए कि यदि उन पर कुछ भी होता है तो घर के सब लोग आएंगे, दोस्त आएंगे बचाने के लिए, बाकी लोग आएंगे, समाज आएगा। ये जो सामाजिक व्यवस्था कमजोर हुई कि एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है और बाकी लोग देखते रहते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं उस समय,
बचाने नहीं आते हैं। शायद इसी कारण से वो मजबूर हुआ होगा कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले, सीता खुद राम ने ललकारो, राम नहीं आने वाले। दुर्भाग्य है ये। इस पर सोचने की जरूरत है कि ऐसा अविश्वास का वातावरण यदि भारत में बनता है तो हमारी जितनी भी ये जो उन्नति हो रही है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। एक भी बेटी पे आक्रमण होता है या उसके आंसू आते हैं इस बात के लिए। कानून अपनी जगह ठीक है, पर हमारा क्या व्यवहार है इस पे, ये बहुत सोचने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल वुमेन डे पे हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि किसी कवि को ये लिखना ना पड़े। कितना दर्दनाक है ये लिखना कि इतना अविश्वास है कि जी कोई दूसरा बचाने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पिता आएगा, भाई आएगा, दोस्त आएंगे, समाज आएगा, आना चाहिए। इसलिए वीडियो नहीं बनाना चाहिए, हमको मदद करने के लिए आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि कई बार ऐसा लगता है कि हमें इस पर सोचना चाहिए। लास्ट में एक और अच्छा मेरे पास एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं, कोट करना चाहूंगा। आज के दिन के लिए बहुत सार्थक हैं। हिंदी की कवित्री हैं कविता तिवारी, बहुत लोगों ने सुना भी होगा उनको, बहुत अच्छा बोलती हैं। उनकी कविता की कुछ लाइनें हैं कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति अजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पर अर्थी को कंधा देकर अब शमशान भी जाने लगी बेटियां। पर ना दूसरा पहरा ज्यादा मार्मिक है। घर में बटा के हाथ रहती हैं मां के साथ, घर में बटा के हाथ रहती हैं मां के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां, कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां, बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दें दिल, कष्ट सहकर भी धैर्य रखती हैं बेटियां। ये प्रश्न सबके लिए, प्रश्न ये चलनशील है सबके लिए आज, नित्य प्रति कोख में मरती क्यों है बेटियां। अगर भारत की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाती है कायदे में, तो शर्म की बात है भारत के समाज के लिए। क्या हमको शर्म आती है? सीखो त्याग, धैर्य, अपनापन। एक और बात, एक ना सोशल स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी को करनी चाहिए कि जो ओल्ड एज होम में पेरेंट्स जा रहे हैं, जो रह रहे हैं, जरा देखो कितने % के पास बेटियां थी कि नहीं थी। क्या दोनों लड़के ही थे या कोई भी नहीं था? एक स्टडी करो, शायद कोई अच्छे एक ऐसे पर आंख ना खुल जाए सबकी कि जिस घर में बेटी नहीं थी, क्या होती तो शायद ना जाते, हो सकता है जाते पर शायद ना भी जाते। ये एक %, एक इस पे रिसर्च करने की जरूरत है कि जो ओल्ड एज होम है वहां पर न जाने कितनी ऐसी घर हैं हमारे जहां बेटियां मां बाप का देखभाल कर रही हैं। मैं चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट, अगर हम चाहेंगे तो IOE से भी इसको फंड करेंगे प्रोजेक्ट को। ये जरा इस पर देखो तो सही स्टडी करके, हमारी आंख खुलेगी शायद। अभी मुझे पता नहीं है कि क्या है वास्तव में, है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन अगर कोई स्टैटिस्टिक्स निकलेंगे तो मालूम पड़ेगा। क्योंकि हजार मजबूरी होने पर भी मां बाप का साथ देती हैं बेटियां। तो इंटरनेशनल वुमेन डे आपका दिन ही नहीं है, हमारा भी है, हमारा भी है। क्योंकि इसको केवल विमेन से जोड़कर न देखा जाए, ये तो जितना आपका है उतना हमारा भी है। खराब आदमियों को की बात करता नहीं, उनको लॉ से ट्रीट होना ही चाहिए, लेकिन बाकी ये मैन वुमेन का है ही नहीं मामला। ये इंसानियत का दिन है, ये मानवता का दिन है, हम सब का दिन है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।